Welcome back, dosto, to Simplified Maths. Hope you all are fine. Dear students, today we are starting a new chapter. Okay, that is chapter 11 called conics that we are starting today. Dosto, in the last lecture we have completed chapter 10, but in fact, not the last exercise. We have completed up to exercise 10.5. Okay, right? Now, I told you that the exercise 10 is a miscellaneous exercise. Okay, means all the different types of sums which we did up to 10.5 will be there mixed up in that exercise. Okay, so I told you to try it at your own, and you can ask me in person also, because now we are meeting in person also. Okay, and if I get time after finishing the portion, then we can definitely go for the online lecture for that last exercise also. Right now I am starting a new chapter which is very very important for your future purpose, and that is conics. ओके, कॉनिक्स वर्ड जो है ना दोस्तों, इट्स सेल्फ यू शुड अंडरस्टैंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू कोन. ओके, you know the cone shape, you know that ice cream cone. So that cone shape, why I'm telling ice cream cone, because it's a hollow. If you remove the ice cream from that, only the cone. Okay, right? On the footpath and on the roads, when you take the ice cream, cone ice cream, then cone will be separate and then scoop will be poured in that cone. The cone is the hollow. So here also we are something connecting with the cone. And before I go for the all the details of this chapter, in this chapter आप लोग क्या पढ़ने वाले हो दोस्तों? You are going to have a circle, okay, then a parabola, then ellipse and hyperbola. All these topics are going to cover in this chapter. Okay, in the old syllabus, means in our state board syllabus, the whole 4 chapters, okay, were different chapters. सर्कल का एक चैप्टर था, एक पैराबोला का चैप्टर था, एक इलिप्स का था और एक हाइपरबोला का था. Now they have what they have done in NCERT book, all these 4 topics are merged in just one chapter. Okay, right? So comparatively it's a little bit a large chapter, but they have reduced some of the portion which was there in the state board book. So not to worry, you will understand it quite easily. But it is not that interesting if you don't okay concentrate. अगर आप ध्यान से शुरू से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये मजा आएगा, इजी भी लगेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल the topic comes here is how you generate the cone geometrically, 3 dimensionally. आप जो कोन को कैसे जनरेट करोगे उसके लिए देखो क्या प्रोसीजर दिया हुआ है. एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, बट दो आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज आई नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट ओके डायरेक्टली. सो अब देखो क्या करेंगे हम कि लेट अस आई टेक वन line, a vertical line like this, vertical line. But this vertical line I call it L, capital L. Vertical line is called L. It is a fixed line. Fixed line का मतलब क्या हो गया? Fixed line means what? This line, once you have selected vertical line, now you cannot move it. Okay, ये move नहीं हो सकती, vertical ऐसे की ऐसे ही fixed. Okay, so it's a fixed line, right? And now see how the cone is being generated. cone कैसे बनाते हैं geometrically, आप देखो, is very interesting. Okay, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे हम वो जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, वो मैं बाजू में लिखता जाता हूँ कि let L okay be the fixed vertical line. Okay, fixed vertical line. ओके, एंड अब देखो और एक लाइन लेंगे हम, वन मोर लाइन विल बी ड्रॉन, बट नाउ दैट लाइन इज नॉट फिक्स्ड, दैट लाइन इज अ मूविंग लाइन. ओके, अब उसको ऐसे स्लैंटिंग बताया हुआ है लाइक दिस. ओके, नाउ दिस लाइन is denoted by M notation.
This line is denoted by what notation? M notation. Okay, let M be the another intersecting line. Okay, let M be the another intersecting line. Okay, मतलब कि ये लाइन जो फिक्स लाइन है ना उसको वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. अनदर intersecting line. Okay, or this point of intersection, no, also it is given one notation, दोस्तों, it is denoted by capital V. Okay, so intersecting line, and at what point they are intersecting? At a fixed point. Okay, and the point of intersection is taken as capital V. ठीक है, राइट. तो ये जो भी हमने ड्रॉ किया वो मैंने बाजू में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो क्या लिया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट एल बी द फिक्स लाइन, वर्टिकल लाइन, means it cannot be moved. Then another line M is taken, which is a moving line in fact. Okay, M be the another intersecting line. Intersect करती है इसको, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? The point of intersection is V. ठीक है दोस्तों, आई होप दिस इज क्लियर. अब क्या करेंगे हम, आप ध्यान से देखना. दिस M लाइन इज अ मूविंग लाइन. ठीक है, तो आप देखो, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. जैसे ये है वर्टिकल लाइन, जस्ट फॉर इंस्टेंस, एंड दिस इज मूविंग लाइन. तो आप ये वाली स्केच पेन है उसको आप मूविंग लाइन समझ लो, ये ब्लू इसको आप फिक्स लाइन समझ लो. तो आपको क्या करना है कि ये जो मूविंग लाइन है उसको रोटेट करना है अराउंड द फिक्स लाइन, ऐसे रोटेट. एंड नाउ यू हैव टू थिंक दिस थ्री डायमेंशनली. दोस्तों आपको इसको थ्री डायमेंशनली एज्यूम करना होगा, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो. और in there is an angle given. If you see the textbook exercise number 11.1, everything I am taking from the textbook only. If you keep the textbook open, this angle is taken as alpha. बराबर. तो आप इस ये वाली लाइन को कैसे रोटेट करोगे दोस्तों? You rotate this line in such a way that the alpha remains constant. ओके, इसको ऐसे रोटेट करोगे तो अल्फ़ा जो है, सपोज ये अल्फ़ा 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री ही रहना चाहिए. वो रोटेट, ये वाली लाइन जो है वो रोटेट करो इसको तो वो 30 डिग्री एंगल बना के ही रोटेट करेंगे, यूँ पूरा ऐसे घूम के वापस आ जाएगी. इजंट इट? ओके, सो एंगल इज अल्फ़ा देयर. सपोज वी रोटेट, मैंने अभी जो बोला ना अभी वो हम लिख दें कि वी रोटेट. ओके, वी रोटेट. कौन सी लाइन को रोटेट करोगे आप? द लाइन M. वी रोटेट द लाइन M. ओके, वी रोटेट द लाइन M in such a way, okay, around the line L, around the line L, okay, in such a way that the angle between them, that is alpha, okay, such a way that angle alpha between them remains constant. ओके, तो आप ध्यान से देखो, अभी इसको रोटेट करके एक मैं यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना दोस्तों. ओके, तो कैसा डायग्राम बनेगा आप ध्यान से देखो. एक पूरा कोन शेप बन जाएगा, आप ध्यान से देखो. ये इस तरह से होगा, this way it would be. okay,
दिस वे इट विल बी। एक्चुअली मेरा ये रफ डायग्राम है, तो वन मोर थिंग टू बी टेकन केयर इज कि ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन जो है ना वो सेम रहेंगे, सेम साइज, ऐसे शो करना है, ठीक है, राइट। बट इट्स ओके ना, इट्स अ रफ डायग्राम, सो नथिंग टू वरी। और अभी यहाँ पे बीच में हमको क्या ड्रॉ करना है, वो फिक्स लाइन, ये जो एल है ना, जिसके अराउंड हमने ये एम को रोटेट किया है, ठीक है। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है दोस्तों, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कॉनिक्स, ठीक है। अब आप फिगर देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ से थोड़ा लाइन को कट करके फिर यूं एरो बताया होगा। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे डॉट करके फिर यहाँ से एरो बताया है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आपको 3 डायमेंशनली इमेजिन करना होगा कि ये लाइन जो है ना वो बीच में से पास हो रही है, समझे दोस्तों, ओके। हाँ, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देखो थोड़ा मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ, जस्ट ऐसे ही है। अभी मेरे पास एक कागज़ पड़ा हुआ है, तो मैं कागज़ का एक कोन बना देता हूँ जस्ट फॉर योर सेक, ऐसे समझो, ये आपको, होप यू कैन सी द कोन, ठीक है, राइट। ये कोन है, इसमें से जो सेंटर है बीच में वो पूरा पूरा क्या है, होलो है ना, खाली है, होलो। और वो जो सेंटर में से ये वाली लाइन पास हो रही है, ये वाली जो लाइन है ना, लाइन एल, वो एग्जैक्ट बीच में से पास हो रही है। और जैसा मैंने ये एक कोन बनाया है ना दोस्तों, ऐसा सेम दूसरा कोन यहाँ पे नीचे भी होगा। ये एक कोन ऊपर है, ये एक कोन नीचे। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, डबल कोन, ओके, राइट। डबल कोन को यहाँ पे उन लोगों ने कुछ नाम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, दैट वी विल राइट। देन द सरफेस, उन लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है, ओके। देन द सरफेस, मैं साइड में जहाँ पे जगह पे हूँ वहीं पे लिख रहा हूँ, द सरफेस generated, okay, surface generated is called, उसको क्या नाम देंगे, ये जो पूरी सरफेस जनरेट हो गई ना, इसको मैंने यूं रोट घुमा लिया। ये जो एल फिक्स लाइन थी हमारी, ये एल जो है वो हमारी क्या है, फिक्स लाइन है, राइट। और ये लाइन जो है वो कौन सी लाइन है, एम है, ठीक है। तो द सरफेस जनरेटेड इज कॉल्ड, एक्चुअली इन शॉर्ट वी विल कॉल इट जस्ट अ कोन ओनली, डबल कोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डबल कोन। बट पूरा नाम इसका जो लिखा है उन लोगों ने वो ये है कि इज कॉल्ड अ डबल नैप, ऐसा लिखा हुआ है, डबल नैप, डबल नैप राइट सर्क्यूलर, डबल नैप्ड राइट सर्क्यूलर होलो। अभी मैंने आपको कागज़ का बताया ना, बीच में से खाली यूं कागज़ में, ये बीच में होलो, ठीक है, राइट। सो होलो कोन, ओके, राइट। एंड one more thing we have to take and just to understand is कि ये पूरा जो कोन बन गया वो कैसा बन गया है, उसको क्या नाम दिया उन लोगों ने, डबल नैप राइट सर्क्यूलर होलो कोन। मतलब इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम उसको, डबल कोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डबल कोन, राइट। बट राइट सर्क्यूलर कोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर ऊपर जो था ना अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, तो यहाँ पर ये तो अल्फ़ा ही रहेगा, क्योंकि हमने ये लाइन एम जो है वो लाइन एम को ऐसे रोटेट किया है कि ये एंगल अल्फ़ा इज़ नेवर गोइंग टू चेंज, ठीक है ना, ओके। तो आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो ये अल्फ़ा है ना, इस टाइप, ये चारों चार अल्फ़ा ही है, ये भी अल्फ़ा, उसके सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी अल्फ़ा, ये सब अल्फ़ा ही हो जाए, कोई चेंज नहीं। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, राइट। अच्छा, अभी once this is clear that what is a double napped right circular hollow cone, in this figure जैसे हमने पूरा एक डबल कोन जनरेट किया ज्योमेट्रिकली, ठीक है,
राइट। इसको आपको 3 डायमेंशनली इमेज करना होगा दोस्तों, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये जो लाइन एल है ना, लाइन एल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन। ओके, लाइन एल is called axis of the cone। ठीक है, here line L is axis of the cone and line M जो है ना उसको जनरेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? वी कॉल इट अ जनरेटर। ओके, जनरेटर मतलब ये एक ऐसी लाइन है, मूविंग लाइन, जो पूरा कोन जनरेट करती है और ये उसकी एक्सिस है। मतलब एक्सिस जो है वो कभी मूव नहीं होती और वो रोटेट होती है लाइन है, तो उसको जनरेटर लाइन बोलेंगे, या तो खाली जनरेटर बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, के दिस इज, यू फील लाइक दिस इज अ लाइन सेगमेंट, इजंट इट? बट हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? लाइन। इसको मैंने देखो दोनों साइड एरो बताया हुआ है, राइट। व्हेन यू शो द एरो बोथ द साइड मीन्स व्हाट दोस्तों? इट्स अ लाइन। एंड यू नो द लाइन हैज़ नो लेंथ, मीन्स इनफाइनाइट है। तो ये लाइन एम जो है वो भी अपर साइड ये वाले पोर्शन में यूँ इनफाइनाइट जाएगी, ये भी यूँ इनफाइनाइट जाएगी। ये लाइन एक्सिस जो है वो भी इनफाइनाइट ऊपर नीचे जाएगी। दैट मीन्स व्हाट दोस्तों? दैट मीन्स दैट दिस फिगर और दिस कोन व्हाट इज जनरेटेड इज अनबाउंडेड। मतलब इसका कोई फिक्स वॉल्यूम, यू कैन नॉट फाइंड द फिक्स वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? राइट। सो you can say that both the cones are extending infinitely on both the ends। इस तरफ ऊपर भी इन्फाइनाइटली यूँ जाएंगे, यूँ ऊपर यूँ, और डाउनवर्ड्स भी वो यूँ जाएंगे। ओके, सो एक्सटेंडेड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन्फाइनाइटली। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दोस्तों। ओके, राइट। सो अभी वो दूसरा आपने क्या लिख दिया? एम इज द जनरेटर, एल इज एक्सिस, और ये जो दो पोर्शन है ना कोन के, उसको भी एक सिंपल सा नाम दिया हुआ है उन लोगों ने। दिस इज को इसको नाम दिया हुआ है, ये है लोअर। ओके, लोअर नैप, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर नैप। और ये वाला जो ऊपर वाला जो कोन है उसको हम क्या बोलेंगे? अपर नैप। ठीक है, लोअर नैप, अपर नैप। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है ना, राइट। अच्छा, अभी once you get the idea that how the cone is being generated using the geometry and using the lines, एक फिक्स लाइन लिया, एक मूविंग लाइन लिया, रोटेट करके पूरा 3 डायमेंशनल हमने कोन जनरेट किया। होलो कोन, राइट सर्कुलर, डबल नेप्ड, ये सब वर्ड्स याद रखना। क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज ऑब्जेक्टिव में कभी कभी थियरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। समटाइम्स यू गेट द थियरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, राइट। And in that case, if you are not gone through all these things, no, then you lose marks। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम सम्स आएंगे वो सर्कल से जो भी स्टार्ट होगा तो वो तो आपको आने वाला है, वो सिंपल है। बट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा हमारा बेसिक हो गया कॉनिक्स के बारे में। ओके, दैट हाउ द कोन इज बीइंग जनरेटेड। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स इज देयर। ओके, अब देखो, अभी हम कॉनिक्स की डेफिनेशन लेंगे। ओके, कॉनिक्स को एक्चुअल में कॉनिक्स सेक्शन भी बोलते हैं। कॉनिक्स को हम क्या बोलेंगे? सेक्शन बायोलॉजी वालों को ज़्यादा समझ आता है, बट हियर वी टेक सेक्शन एज ए मीन्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पे सेक्शन बोलते हैं। So conics or a conic section, उसकी definition. What is the definition? Okay. So that definition we will take, and for that definition, again, I have to draw a right circular cone. फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ करूँगा दोस्तों, ऐसे, this way।
एक कोन ड्रॉ करेंगे हम. आफ्टर ड्रॉइंग दैट कोन, हाउ आई विल डिफाइन द कॉनिक सेक्शन. जब भी आप कोन ड्रॉ करते हो ना, तो आपको उसका एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ से एक्सिस पास होके यूं बाहर निकलता है, राइट. एक्सिस ऑफ द कोन dot and then it comes out like this. ठीक है ना. तो ये हमारा L मीन्स एक्सिस, ये हमारी जनरेटर लाइन है M. ठीक है. दिस एंगल इज अल्फा. ये सब हमारा कॉमन रहेगा जब भी आप कोन ड्रॉ करोगे, राइट सर्कुलर कोन, तो ये सब हमारा कॉमन रहेगा. ठीक है. ओके. नाउ what is the conics? So if you have a textbook, no dosto, then on the page number actually 237, if you see the figure 11.3, okay, just see the figure 11.3. So first I will write the definition of conics, okay, and then we will understand in this diagram also. Okay, so the definition of conics is the intersection of a plane. The definition is like this. I am writing it here only. The intersection of the plane or of a plane with the right circular cone, or in short if I write with a cone, okay, is called conics. ये एकदम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हमने लिखी, and it's like just like this also it is given in the textbook also. The intersection means what, you know. In another way you can say the points of intersection, or in more precisely if you want to write, what you will write here, the points of the set of points of intersection, even more precisely, the set of points of intersection of a plane with a cone is called a conics. मतलब यहाँ पर एक वर्ड आ गया. क्या वर्ड आ गया दोस्तों? प्लेन. So where is the plane in this figure? Still I have not drawn at all. So now I will draw a plane in this. Okay. Now all of you can textbook, if you your textbook is open, you can see the figure 11.3. Okay. In the figure 11.3 they have drawn the रेक्टेंगुलर प्लेन. इफ यू सी, ठीक है, एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ ऊपर के जो उसका जो अपर नैप है ना, वो अपर नैप में उन लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है. नॉट नेसेसरी दैट यू ड्रॉ इट इन द अपर नैप ओनली, यू कैन ड्रॉ इट इन द लोअर नैप ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो. राइट. नाउ सी हाउ दे हैव ड्रॉन इट. इफ यू सी इट, नो, इट्स गिवन लाइक दिस. एक पूरा रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया हुआ है प्लेन को, लाइक दिस. ठीक है, दिस वे इट इज ड्रॉन. नाउ बी केयरफुल. ये अल्फा इसमें बीच में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये अल्फा प्लेन में आ गया, ऐसा मत समझना. ओके, लेट मी कैंसल अल्फा फ्रॉम हियर एंड आई विल जस्ट पुट एन एरो मार्क. यहाँ पे मैं एक एरो मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे यू अल्फ़ा लिख देता हूँ. सो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए. ठीक है. अब ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया रेक्टेंगल, इफ़ यू सी द फिगर, दे ड्रॉन वन मोर लाइन इन बिटवीन देम पैरेलल टू दिस टू ऑपोजिट लाइन. एक और लाइन ड्रॉ किया हुआ है. ओके दोस्तों, लाइक दिस.
Now please students don't get confused कि भाई plane is only of this much of the size, because again plane is an undefined term and also it is extending infinitely, unbounded. मतलब ये plane खाली इतना छोटा सा नहीं है, ये all four vertices जो मैंने draw किए है ना, it goes infinitely extending means वो भी जैसे कोण भी एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, बाय द सेम वे प्लेन इज ऑल्सो इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग है. तो ये इन बिटवीन लाइन जो ड्रॉ किया दोस्तों प्लेन में, राइट, ये हमारा प्लेन है, ये है प्लेन. सो इन बिटवीन जो लाइन ड्रॉ किया वो इसीलिए किया है, द रीजन टू ड्रॉ दिस लाइन इज ओनली दैट दे वांट टू शो दैट दिस प्लेन, ये जो प्लेन है रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, इट मेक्स एन एंगल. ये जो यहाँ पे एक एंगल बना है, ये एंगल यू, और ये एंगल को इन लोगों ने दे डिनोटेड एंगल विथ अ बीटा, व्हाट दे कॉल इज अ बीटा एंगल को. फिर यहाँ पे मेरा वो कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं इसको भी यूं एरो करके यहाँ पे बीटा लिख रहा हूँ. ओके, so beta angle is what? A beta angle is the angle made by the plane with the axis of a cone. What you will say? Beta is the angle, okay, angle made by the plane with the axis of a cone. ठीक है, ये हमारा बीटा एंगल है. नाउ दोस्तों, व्हाट इज द कॉनिक सेक्शन, कि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, तो ये प्लेन है और एक कोन है. सपोज अभी मैंने वो एक कोन ड्रॉ करके, सॉरी प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया था कोन, ऐसा एक कोन है समझो, ठीक है, लाइक दिस. सपोज वी हैव अ कोन, ठीक है, दिस वे इट इज. देखना अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ वो कॉन शेप. ये हमारा कॉन हो गया, देखो ये है, दिस इज द कॉन. अब ये कॉन जो है ना दोस्तों, ये कॉन को एक प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट करता है, उसको कट करके जाता है. ये मेरा पाम जो है, मेरा हाथ जो है, जो जस्ट कंसिडर दैट दिस इज अ प्लेन, वो उसको यूँ स्लैंटिंग कोई भी डिफरेंट एंगल में उसको कट करेगा. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट एंगल से कट करेगा, तो जो बीटा एंगल है वो बीटा एंगल विल बी चेंजिंग, एंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा विल बी ऑल्सो चेंजिंग. होप यू अंडरस्टैंड दिस. राइट नाउ वी डोंट नो alpha and beta what angle it is, why some alpha is smaller, beta is smaller, whether they are equal, that we don't know. It depends on the how slanting or horizontally this plane cuts this double cone. ठीक है, okay. So according to the measurement of alpha and beta, दोस्तों ये पूरा चैप्टर का बेस आ जाता है. So जैसे ये प्लेन जो है वो डिफरेंट एंगल्स में, मतलब बीटा चेंज करते जाओ तो आपको अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलेंगे. जैसे सर्कल मिलेगा, बाद में पैराबोला भी मिलेगा, इलिप्स भी मिलेगा, हाइपरबोला भी मिलेगा, ऑल यू विल गेट. सो नाउ ऑल ऑफ यू, आई विल नॉट ड्रॉ ऑल द 4 डायग्राम्स विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 238. दोस्तों यू जस्ट सी ये फिगर 11.4, 11.5, 11.6 एंड 11.7. ओके, आप ये सब फिगर देख लो ध्यान से. उसका मैं यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके बता देता हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये पूरा चैप्टर का हार्ट आ गया, समझ लो. इट्स अ हार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, सी ऑन दैट सेम पेज इट इज़ गिवन डीजनरेटेड कॉनिक सेक्शंस करके एक टॉपिक दिया हुआ है. उसमें सबसे पहले देखो, देर आर 4 पॉइंट्स गिवन, इन फैक्ट 3 पॉइंट्स गिवन, सॉरी. सो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स गिवन? दैट व्हेन एक्चुअली वी शुड हैव अ 4 पॉइंट्स.
फोर्थ पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सर्कल को इन लोगों ने अलग कर दिया है पूरा। सर्कल टॉपिक जो है वो अलग हो गया है। हाँ, वो पूरा अलग है, सॉरी। ऑन पेज नंबर थ्रू 237, ओके, जस्ट टर्न द पेज बैक। पेज नंबर 237 पे ये दिया हुआ है। वो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला करके एक टॉपिक है, उसमें से मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ और से व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो बीटा है ना वो 90 डिग्री मतलब पूरा यूं कट होता है, यूं वर्टिकली ऐसे। ये स्लैंटिंग है ना, राइट नाउ इट इज स्लैंटिंग। स्लैंटिंग के बदले वर्टिकली अगर कट हो जाए, देन इफ यू सी द फिगर 11.4, you just go on looking at the figure also. So then the section is a circle, okay. Then the section means intersection point. जो सेक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। कौन सी फिगर आपको देखनी है, यू हैव टू सी द फिगर 11.4। बाद में इफ इंस्टेड ऑफ बीटा 90, सपोज इफ अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री के एंगल से अगर वो प्लेन कॉनिक्स को अगर कट करेगा, देन ओके, then the section, in that case the section is ellipse। उस टाइम वो सेक्शन क्या बनेगा, सेक्शन इज एन इलिप्स। ठीक है, इलिप्स हो जाएगा। अब उसमें आपको कौन सी फिगर देखनी होगी दोस्तों, 11.5 को देखोगे फिगर। हाँ, इफ़ यू कीप द बुक ओपन तभी पता चलेगा कि भाई सर क्या बोल रहे हो और क्या लिख रहे हैं, नहीं तो सब हवा में जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट आएगा दैट इफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा है, देन द सेक्शन, इन दैट केस द सेक्शन इज पैराबोला। उसमें क्या बनेगा, पैराबोला। उस टाइम आप फिगर देखोगे 11.6। कौन सी फिगर देखोगे, 11.6 देखोगे। और लास्ट में पॉइंट नंबर 4 जो है, इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फा, अगर इस टाइप का रिलेशन है अल्फा बीटा के बीच में, देन ओके, देन द सेक्शन ओके इज हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला होता है वो सब। जब टॉपिक आएगा हम डिटेल में जाने ही वाले हैं। ओके, राइट नाउ फिगर 11.7। ओके दोस्तों, सो ये आज के टॉपिक में, आज के हमने पूरा डिटेल ले लिया है कि व्हाट इज कॉनिक सेक्शन, हाउ वी जनरेट द कोन एंड व्हाट इज द कॉनिक सेक्शन, एंड हाउ द सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स ऑल आर जनरेटेड वी गेट एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विथ अ कोन। ये सब पूरा ये चैप्टर का टॉपिक है जो आप पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, सो राइट नाउ गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गो फॉर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट कॉनिक सेक्शन, दैट इज सर्कल। ओके, गुड डे।